cut into dices, olive oil, choti ilachi, base. नमस्कार, जान भी जहान भी इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। इन दो शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि कोरोना संकट से देशवासियों की जान भी बचानी है और ये देश की इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और साथ ही देश को आगे भी लेकर के जाना है, चलाना भी है। चुनौतियों के निपटने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के नए सफर के लिए अपने आप को तैयार भी करना है। ठहर कर चुनौती की गंभीरता के बीच, सावधानियों के बीच अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। और जैसा कि आपको पता है कि एमएचए गाइडलाइंस में एक बहुत ही बड़ा सेक्टर जो है वो है फाइनेंशियल सेक्टर और वित्तीय स्थिति या जो वित्तीय क्षेत्र है उसकी मजबूती देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसीलिए इस अहम मुद्दे को, इस अहम सेक्टर को आपके लिए लेकर के आए हैं। और आज आरबीआई ने भी कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए, उस पर हम लगातार आपको अपडेट देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इनका असर क्या होगा इस पूरे अर्थव्यवस्था के लिहाज से, इस पूरे बैंकिंग सिस्टम और जो एनबीएफसीज के लिए आज आरबीआई ने बड़े ऐलान किए हैं। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। कोरोना संकट के इस मुश्किल दौर में आज रिजर्व बैंक ने लोगों को बड़ा भरोसा दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को यह जानकारी दी कि बैंकों में पैसों की कमी नहीं है और न ही भविष्य में ऐसी किसी भी कमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस महामारी के असर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत की स्थिति इस मामले में दूसरे देशों से काफी बेहतर है और भारतीय अर्थव्यवस्था इस संकट के बीत जाने के बाद 7% से ज्यादा की दर से विकास करेगी। On April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. वहीं कृषि क्षेत्र पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर रही है।
In my statement of March 27, I had referred to continuing resilience of agriculture and allied activities on the back of all-time highs in production of food grains and horticulture, with huge buffer stocks of rice and wheat far in excess of the buffer norms. By April 10, pre-monsoon Kharif sowing had begun strongly, with acres of paddy, which as you know is the principal Kharif crop, up by 37% in comparison with the last season, that is in comparison with the Kharif of 2019. States such as West Bengal, Telangana, Odisha, Assam, Karnataka and Chhattisgarh are leading in sowing activity despite the lockdown. On April 15, the India Meteorological Department IMD forecast a normal southwest monsoon for 2020 season, with rainfall expected to be 100% of the long period average. और आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि इस वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 476.5 बिलियन डॉलर पर स्थिर है, जो अगले 11 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि बैंकों में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और एटीएम भी काफी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। The level of foreign exchange reserves which we have continue to be robust at $476.5 billion on April 10th, equivalent to 11.8 months of imports. RBI has taken a number of steps to ensure normal business functioning by the entire banking sector. As a result, payment infrastructure is running seamlessly. Banks have been required to put in place business continuity plans to operate from their disaster recovery sites and or to identify alternate locations for critical operations so that there is no disruption in customer services. Our data show that there was no downtime of internet or mobile banking. On an average, ATM operations stood at 91% of the full capacity. Banks have indeed risen to the occasion by refilling the ATMs regularly despite several logistical challenges. Surplus liquidity in the banking system has increased sharply in the wake of sustained government spending. Systemic liquidity surplus as reflected in net absorption under the LAF averaged at about rupees 4.36 lakh crore during the period March 27th to April 14, 2020. और आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, जबकि सीआरआर और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और आज ये भी आज का एक बहुत बड़ा फैसला है। On April 15th, the RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window. So that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The policy repo rate, however, remains unchanged at 4.4% because that is a matter which is decided by the MPC, and also the marginal standing facility rate and bank rate, they also remain unchanged at 4.65%. शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि अगर सभी लक्ष्य ठीक ढंग से पूरे किए जाएं तो आर्थिक मंदी अगले वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में 4% तक कम होगी। Early developments suggest that inflation is on a declining trajectory, having fallen by 170 basis points from its January 2020 peak. In the period ahead, inflation could recede even further, barring of course any supply side disruption shocks, and may even settle well below the target of 4% by the second half of 2021. Such an outlook would make policy space available to address the intensification of risks to growth and financial stability brought about by COVID-19.
और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो कि अर्थशास्त्री हैं और पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार में। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ अनिल कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। आज के जो फैसले हैं आरबीआई की तरफ से, उस पर आपका फौरी रिएक्शन क्या है और ये किस तरह से हमारे उन सेक्टर्स को फायदा पहुंचाएगा जिनके लिए अभी तक ऐलान नहीं किए गए थे आरबीआई की तरफ से? पहला रिएक्शन, उसके बाद मैं फिर डिटेल्स में आता हूं सर। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो तकरीबन 1-2 दिन के बीच में हमें पता था, मैं उस वक्त वित्त मंत्रालय में थे, तकरीबन हमें पता था कि कौन से सेक्टर्स और क्या चैनल्स ऑफ डिफिकल्टी होंगी क्रेडिट मार्केट्स में, मनी मार्केट्स में। इस पैंडेमिक का प्रॉब्लम ये है कि ना ही तो उसकी एक्चुअल मेडिकल अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, पर ये भी आस्ते आस्ते इवॉल्व हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो इसलिए ये मेथड जो आरबीआई ने किया है वो सही है कि जो हमें पहले पता थी कि चैनल्स बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग चैनल सबसे महत्व रखती हैं इंडिया में, तो उसमें पहले फोकस किया था। अब सेकेंड सेट ऑफ अनाउंसमेंट्स में उन्होंने जो नेक्स्ट चैनल है वो जो भी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और जैसे हमें पिछले साल जब वो ग्रोथ फॉल हुआ था तो हमें सबको पता लग गया था, एनबीएफसीज और एटसेट्रा जो सेकेंड लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू मनी क्रेडिट फ्लो होता है, तो उस पे इसमें फोकस था। और जैसे आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि ये ऐसी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इसमें कि हमें रोज देखना पड़ेगा क्या कैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, और उसके हिसाब से अपने फैसले लेने पड़ेंगे। जी, उसके हिसाब से हम और फैसले लेते जाएंगे। जी, प्रोफेसर अनिल कुमार, आप क्या आपको लगता है कि आज जो फैसला लिया गया है रिवर्स रेपो रेट में कमी करने का 25 बेसिस अंकों की, और करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो लिक्विडिटी सपोर्ट है खासतौर पर एमएफआईज के लिए, एनबीएफसीज के लिए, जिसमें नाबार्ड और आपके सिडबी और एनएचबी शामिल हैं, उसका जो दूसरे सेक्टर्स हैं अर्थव्यवस्था के, जहां तक अभी तक पैसा नहीं पहुंच पाता, क्या असर पड़ेगा? प्रोफेसर अनिल कुमार। समझता हूं कि अब जैसे 20 अप्रैल से फेस्ड मैनर में लॉकडाउन को खत्म करने की बात है और कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्री को चलाने की बात है। अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है और धन के लिए लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। तो उस दिशा में मैं समझता हूं जो 50,000 करोड़ रुपए जो आरबीआई ने लिक्विडिटी के तहत अर्थव्यवस्था में करने का प्रावधान किया है, इसका खासकर सीधा सीधा असर और अच्छा असर हमारे कृषि सेक्टर के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, एनबीएफसीज के ऊपर, एमएफआईज के ऊपर, जो कि इस वक्त लिक्विडिटी क्रंच से सफर कर रहे थे, उसका बहुत अच्छा दूरगामी प्रभाव होने वाला है इससे। डॉक्टर विरमानी, अगर हम आपसे समझना चाहें एनपीएस को लेकर के, आज जो आरबीआई ने कहा कि अगर आप इस मॉरेटोरियम पीरियड जब 30 जून तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपको 90 दिन मिलेंगे, एनपीए डिक्लेयर आप नहीं होंगे, इससे कितनी बड़ी राहत है एमएसएमई सेक्टर के लिए, खासतौर पर आज के इस जो फैसला लिया गया उसके संदर्भ में? डॉक्टर साहब, ये भी अनयूजुअल और आगे से पहले महत्वपूर्ण है, और उसका बड़ी सिंपली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है कि गवर्नमेंट लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन से ये होता है कि जो कमिटमेंट, लीगल कमिटमेंट थी लोगों की, रेंट देने की, इंटरेस्ट देने की, डेट रिपेमेंट, वो सारी एक तरफी बंद हो जाती है। मतलब जो हमारे जो बिजनेस कर रहा है उसके ब्लॉक हो जाते हैं पैसे उसके। जी, he has to give interest payments etc. So इसको डील करने के लिए ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। तो ये सस्पेंशंस, लीगल सस्पेंशन जिस तरह भी हो सकती है, इसको फोर्स मेजोर जिसको कहते हैं या जैसे भी है, पर वो आरबीआई का काम नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है। तो आरबीआई ये अश्योर कर रहा है कि जो चीजें उनके हाथ में हैं उसको एक्सटेंड करे। तो लॉकडाउन पीरियड में तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद 1-2 महीने और लगेंगे टू गेट बैक इवन टू क्राइसिस लेवल जिसको कहते हैं। नॉर्मल तो अभी 6-9 महीने में आएगा। तो इसका बहुत महत्व है, क्योंकि कई
कंपनीज छोटी बड़ी सब बैंकरप्ट होने की बहुत इंक्रीज हो गया है ना, इंडिया में बट यूएसए सब जगह में हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो एक्सटेंशन है इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। और प्रोफेसर अनिल कुमार, जो बैंक्रप्सी की बात कर रहे हैं डॉक्टर विरमानी, उसमें भी 90 दिन की रियायत दी गई है। अगर 210 दिनों में एसेट डिस्ट्रेस में है आपका और रेजोल्यूशन नहीं हो पाता है तो उसमें भी आपको 90 दिन दिए जाएंगे। तो एक तरह से पूरी जो एमएसएमई सेक्टर जो अंडर स्ट्रेस है, जिनके पास कैश फ्लो नहीं हो रहा है और वो जिस तरह से अपने लीगल कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक तो एनपीए की राहत 90 दिनों की और उसके साथ ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी 90 दिन दिए गए हैं अंडर आईबीसी। सर कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसमें जो सॉल्यूशन भी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकाला है। अब पीछे 27 मार्च को आरबीआई ने मोरेटोरियम अनाउंस किया। अब सबसे बड़ी दुविधा थी कि मोरेटोरियम करने के बाद एनपीए क्लासिफिकेशन जो बेसल 3 रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए उसका क्या होगा। तो आज के इस अनाउंसमेंट से आरबीआई से ये बात साफ हो गई है कि ये 90 दिन का पीरियड एनपीए कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी राहत बैंक को मिली है इसके साथ। और साथ में जो एमएसएमई अपना जो बैंक से पैसा लिया हुआ था जो नहीं दे रहे थे उसके रिजोल्यूशन पीरियड में एक्सटेंशन की भी बहुत बड़ी जरूरत थी, वो आज एक्सटेंड करके मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी राहत एमएसएमई सेक्टर को और इंडस्ट्री सेक्टर को इसके द्वारा प्रदान दी गई। डॉक्टर विरमानी, एक बहुत ही राहत की बात जो आरबीआई गवर्नर ने ये कही कि आगे जाते हुए आपका इन्फ्लेशन कम होगा। हालांकि हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से चूंकि सप्लाईज नहीं है आपका महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि खरीफ बेटर हो रही है, आपके जो फ्यूल के दाम है वो कम हो रहे हैं, प्रेशर इन्फ्लेशन पे डाउनवर्ड होगा। ये भी शायद अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है और वो शायद संकेत दे रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और भी कुछ अच्छी खबरें आने वाले दिनों में दे सकते हैं। तो इसको अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो कई शॉक्स जिसको कहते हैं नेगेटिव, जैसे क्राइसिस होता है, कई डिमांड की साइड से शॉक्स होते हैं, कई सप्लाई की साइड से होते हैं। तो ये एक यूनिक शॉक है जो साइमल्टेनियसली डिमांड और सप्लाई का शॉक है, परचेजेस के साइड से भी और प्रोडक्शन के साइड से। तो जो बैलेंस है अब तो क्योंकि सप्लाई शॉक करके कई प्रोडक्शन बंद हो गई है पर डिमांड उससे और भी कम हो गई है। तो इसलिए लॉकडाउन के पीरियड में तो उसका बैलेंस है, क्योंकि खाली आप एसेंशियल कमोडिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही खरीद सकते हैं। और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जैसे उन्होंने एम्फसाइज किया वो काफी अच्छी है, तो इसलिए एसेंशियल कमोडिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन्फ्लेशन, उन चीजों में इन्फ्लेशन कम होगी। और दूसरी साइड जो है वो ग्लोबली अब एक्सेस कैपेसिटी हो गई है, डिफ्लेशन हो रही है। तो जो अब हम आगे देखें तो इवन नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन कम होगी और लाइक्लीहुड ऑफ डिफ्लेशन है। तो इसी करके ये फोरकास्ट जो उन्होंने दिया ये बिल्कुल सही है। जी, अब इस प्रोग्राम में जो एनबीएफसी सेक्टर के लिए आज किया गया है, रमन अग्रवाल जो कि एफआईडीसी के चेयरमैन हैं, उनके साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। रमन जी, हम क्या कहें, आपसे बात हो रही थी पिछले दिनों, आपने जो एनबीएफसीज की समस्याएं बताई कि उनको बैंक की तरफ से कुछ लिक्विडिटी नहीं मिल रही, आरबीआई की तरफ से नहीं मिल रही है और उनके पेमेंट भी फंसे हुए हैं उनके वेंडर्स की तरफ से। तो दोनों तरफ से जो मार है वो एनबीएफसीज को झेलनी पड़ रही है। अब आज के फैसलों के बाद में आप एनबीएफसी सेक्टर्स की स्थिति आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हैं और क्या इससे जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए सेक्टर्स हैं उन तक आप लोग मदद पहुंचा पाएंगे? सर चलिए, रमन जी से हम कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अब 20 तारीख के बाद में जब सेक्टर्स धीरे धीरे खुलने लगेंगे, राज्य सरकारों को किस तरह से कोशिश करनी होगी अपने जो फोकस सेक्टर्स हैं, जो अपने स्ट्रॉन्ग एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनको रिवाइव करने के लिए? सर सबसे पहले तो मैं समझता हूं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, कहीं पर सप्लाई बोटलनेक्स ना हो, तो सप्लाई चेन जो बनी हुई है उसमें कहीं पर बाधा ना हो। जी, तो राज्य सरकार को हम समझते हैं कि ऐसा उनको कदम उठाने चाहिए कि किसी भी तरह के बोटलनेक्स ना हो। और साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो हम कुछ इंडस्ट्रीज को चलाने वाले हैं 20 तारीख के बाद, वो भी जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म का सही प्रकार से पालन किया जाए। उसके लिए ठीक ढंग से एडवाइजरी और इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जिस हिसाब से अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है,
तो ऐसा लगता है कि ये सब ठीक ठाक स्मूथली हो जाना चाहिए। डॉक्टर विरमानी, अर्थव्यवस्था के दो अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बांटते हैं। ज्यादातर जो हिस्सेदारी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है। आपको क्या लगता है जो लॉकडाउन खुलेगा तो उसमें पहले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को धीरे धीरे लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए खोलना ज्यादा सही रहेगा? व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी एट दिस पॉइंट सर? देखिए, दोनों को खोलना पड़ेगा, पर मैं थोड़ा सा जो पर्सनल नॉलेज से मैं बताना चाहता हूँ कि इवन जो इनडायरेक्ट सेक्टर्स हैं, जैसे गैस सप्लाई तो भी फ्री है, पर गवर्नमेंट ने जो सिलेंडर्स हैं, जो इनपुट्स को भी फ्री कर दिया है। पर मुझे पता है, मेरे को रिपोर्ट्स आई हैं कि जो फैक्ट्रीज हैं उनको पासेस नहीं मिल रहे। तो जैसे मेरे दूसरे गेस्ट ने बोला क्वाइट करेक्टली कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको काफी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन स्टेट वालों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को समझ के सेंटर से डिस्कस करके ये काफी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस नीचे तक पहुंचानी पड़ेंगी। नहीं तो नॉट ओनली स्मॉल इंडस्ट्रीज पर बड़ी इंडस्ट्रीज को भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब पार्शियल लॉकडाउन होता है तो ये पासेस वगैरह जरूरी रहेंगे। और दूसरी चीज है, वो आपकी बात सही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, रिक्वायरमेंट्स, वो अभी चलते रहेंगे और वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को थोड़ा आसानी रहेगी। स्मॉल स्केल सेक्टरीज जो सेक्टर है उसमें लोग काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, बिल्कुल। तो उनको नॉर्म्स को मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर उनको हेल्प करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जी, सबको मास्क देने पड़ेंगे और जो प्रिकॉशंस हैं वो तो बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि जो प्रिकॉशंस हैं उनको तो लेना ही पड़ेगा। इस बीच हमारे साथ रमन अग्रवाल भी जुड़ गए जिनकी हम चर्चा पहले कर रहे थे। रमन, एनबीएफसीज क्या अब बेहतर तरीके से अपने सेक्टर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को सर्व कर पाएंगी आज के डिसीजन के बाद? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही एक वेलकम आज गवर्नर दास का जो स्टेटमेंट था, एड्रेस था, क्योंकि ये एनबीएफसीज की पोजीशन रियल टाइट हो गई थी। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एनबीएफसीज का नहीं है, ये अल्टीमेटली फायदा उन बोरोवर्स का होने वाला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इस लॉकडाउन की वजह से। जो छोटे स्मॉल टाइम छोटे कारोबारी हैं, उनका जिनके रेवेन्यू बिल्कुल खत्म, ड्राई अप हो गया है, उनके लिए बहुत जरूरी था कि अगर वो उनका 2 किस्त टूटी है और अगर वो मार्च, अभी 3 महीने मॉरेटोरियम हो जाता है तो उनका एनपीए हो जाएगा पुराने नॉर्म्स के हिसाब से। बिल्कुल। तो एनपीए का मतलब है उनको दोबारा कोई पैसा नहीं मिलेगा मार्केट से। तो इसलिए ये बहुत जरूरी था और ये हमने डिमांड रखी थी और बहुत अच्छी बात गवर्नर ने कही। दूसरी बात, इसी सेगमेंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। इनको और एडिशनल फंडिंग सपोर्ट चाहिए होगी, वो उनको जो क्रेडिट चाहिए वो एनबीएफसी डिलीवर करती हैं। तो जब तक हमें डेडिकेटेड फंडिंग अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो पहले टीएलटीआरओ किया वो तो सब पैसा बड़ी कॉर्पोरेट्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मिल गया, ठीक है, लेकिन आज उन्होंने जो अनाउंस किया वो कम से कम 25,000 करोड़ उन्होंने बोला है कि कम से कम स्मॉल एंड मीडियम साइज एनबीएफसी को ही दिया जाएगा। हाँ, तो आगे जाते हुए बहुत अच्छी रहा। तो अग्रवाल साहब, आगे जाते हुए कौन से सेक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिवली इंपैक्ट होंगे? एनबीएफसीज ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको डायरेक्टली ज्यादा फौरी तौर पर फायदा पहुंचाती हैं, समझना चाहें आपसे? हाँ, देखिए, जितना एमएसएमई सेगमेंट है, क्योंकि आज की डेट में एमएसएमई सेगमेंट को मेजरली एनबीएफसी फाइनेंस करती हैं, जितने आपके स्मॉल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं या छोटे शॉपकीपर हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, ई रिक्शा ड्राइवर है या एक टेम्पो चलाने वाला है, तो जितने भी छोटे बोरोवर्स कारोबारी हैं उन सबका फायदा इसमें होगा, बेनिफिट उन सबको मिलेगा, राहत मिलेगी। रादर बेनिफिट क्या बोले, हम कहें राहत मिलेगी। तो रमन जी, क्या आप एनबीएफसीज की तरफ से ये भरोसा दिला सकते हैं एज ए चेयरमैन फॉर द एसोसिएशन ऑफ एनबीएफसीज कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बेजा नहीं लिए जाएंगे और एक जेन्युइन क्रेडिट की कॉस्ट जो है वो एमएसएमई के लिए रखेंगे आप लोग? हाँ, देखिए, थोड़ा सा मैं एक तो टेक्निकली करेक्ट कर दूं, मैं को चेयरमैन हूं एफआईडीसी का, लेकिन हाँ, जो आपने मूल बात कही, देखिए बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अनड्यू किसी से कोई चार्ज लिया जाएगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते। हम इनफैक्ट पहले भी हमने कहा था, हम आज भी एक एडवाइजरी इशू करने वाले हैं अपने मेंबर्स के लिए कि जो सरकार हमें राहत दे रही है वो आगे अल्टीमेटली बोरोवर्स को पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबके फायदे में है। आज की डेट में देखिए, कोई आदमी अपना सोचे तो वो सबसे गलत होगा
और हमें अल्टीमेटली उन छोटे लोगों कारोबारियों को सोचना पड़ेगा जिनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है लॉकडाउन की वजह से। रमन जी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि ये पहली राहत नहीं है। अगर आप लोग इस 25,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करते हैं और अगर डिमांड, जेन्युइन डिमांड आती है प्रोडक्टिव सेक्टर से, तो और दूसरे ट्रांच के लिए सोच सकते हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे आरबीआई गवर्नर को ये भरोसा हो कि आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं और एमएसएमईज की मदद कर रहे हैं? देखिए, ये चीज सामने आएगी, आप देखेंगे कि जब ये क्रेडिट मार्केट में जाएगा, जब ये पैसा एनबीएफसीज को मिलेगा और आगे मार्केट, देखिए आप एक चीज और समझिए, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, हम इंटरमीडिएट हैं। हमारा रॉ मटेरियल पैसा है, हमारा फिनिश गुड पैसा है, हम पैसा बोरो करते हैं और आगे लेंड करते हैं। जी जी। अगर हम एक पैसे को बोरो करके अपने पास रखेंगे तो हमारा बिजनेस फेल है जब तक हम उसको आगे नहीं लेंड करेंगे। तो वो लेंड करेंगे, मार्केट में क्रेडिट जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, तो ये चीज अपने आप सामने उभर के आएगी। जैसे हमने देखा था पिछले 2018 में आईएलएफएस के बाद जब एनबीएफसी में तंगी आई तो सीधा सीधा प्रभाव एमएमसी सेक्टर में पड़ा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पड़ा, कंज्यूमर गुड में पड़ा। अब इस तरह का आप देखेंगे इन्हीं सब सेक्टर्स को अब कुछ राहत मिलेगी जब ये पैसा मार्केट में जाए। रमन अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर वर्मानी, 30 सेकंड सिर्फ हमारे पास हैं, आपका फाइनल कमेंट्स। आज का जो एक लाइन ऑफ रिलीफ है आरबीआई की तरफ से, खासतौर पर लिक्विडिटी को लेकर के, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? पूरे अर्थव्यवस्था पर असर सर, 30 सेकंड है सिर्फ। देखिए, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बहुत एसेंशियल है। तो जो आरबीआई है उनको एक्सपीरियंस है पिछले क्राइसिस का और उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और हम सुन रहे हैं कि उनका प्रोग्राम आ रहा है, तो ये दोनों इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्मानी वक्त निकालने के लिए। रमन अग्रवाल जी, आपका भी धन्यवाद। प्रोफेसर अनिल कुमार जी, लास्ट वर्ड, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। इसमें मैं कहूंगा 3 बिंदु जिसके ऊपर आरबीआई काम कर रहा है, वो मेंटेनिंग लिक्विडिटी, सेकंड फैसिलिटेटिंग द बैंक क्रेडिट एंड थर्ड इज ईजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस। इन तीनों के ऊपर इनके 2 जो रिलीफ मेजर्स पहले 27 मार्च को अनाउंस किया था और जो आज 17 अप्रैल को अनाउंस किया, जी जी, इसके दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए। आप तीनों मेहमानों का जान भी जहान भी इस खास कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। मेरे लिए सबसे प्रेशियस है टाइम, इसीलिए LIC की वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रीमियम भरता हूँ। अब लाइफ तो सिक्योर्ड है ही, टाइम भी बचता है। LIC है तो और कहीं क्यों जाएं? दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान, अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप मीडिया पर्सनल हैं, आप सिक्योरिटी पर्सनल हैं, इफ यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस इन दीज टाइम्स, देन यू शुड स्टे सेफ, अवॉइड डिस्टेंस फ्रॉम योर किड्स ऑल्सो इफ पॉसिबल। एंड जैसे ही आप घर में वापस घुसते हैं, आप इमीडिएटली अपने कपड़े बदलिए, उनको धोएं, उनको धूप में सुखाएं, नहा लीजिए अगर पॉसिबल है।
I would like to send a message to the public. Right. Don't be panicky. Right. And the government of India has finalized some guidelines for the testing. Don't go testing without any prescription of the doctor, without going to the doctor. If doctor feels, if doctor says that it is required, only then go. कोरोना के खिलाफ विश्वव्यापी जंग में भारत एक निर्णायक भूमिका में है और भारत की भूमिका की तमाम विश्व में तारीफ भी हो रही है, सराहना भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह के कदम भारत ने उठाए हैं काफी कारगर साबित हो रहे हैं और भारत की स्थिति विश्व के कई देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। और उसे ही देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि कोरोना को हराना है, कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतनी है, इसमें अहम भूमिका निभानी है और इसीलिए सरकार ने द्वितीय चरण के लॉकडाउन का ऐलान किया 3 मई तक विभिन्न दिशा निर्देशों के साथ। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर भी किया जा रहा है और सैनिटाइजेशन जो बहुत जरूरी है वो भी हम इसकी शुरुआत में करेंगे। तो हम हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं और इसके बाद जो है सवाल शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। सबसे पहले यही सवाल आपसे कि प्रधानमंत्री ने कहा इस बार जो मूल मंत्र है जान भी और जहान भी, इसके क्या कुछ गूढ़ार्थ हैं और किस तरह से इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है सख्ती के साथ? स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री और उनका ऐसा आह्वान कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर सब एक डोर में बंध गए और जिस प्रकार अनुशासनबद्ध तरीके के साथ लोगों की तरफ से सहयोग मिल रहा है, किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी अवस्था के हों, अधेड़ उम्र के बुजुर्ग हों, बच्चे हों, अपने आप वॉलंटरली जिस प्रकार आपने सोशल डिस्टेंसिंग की ओर इशारा किया उसका पालन हो रहा है, ये अपने में अद्भुत है। और इसका कारण ये है कि मोदी जी की जो व्यक्तिगत विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, आम नागरिक के मन में उसे लगता है कि यदि मोदी जी ने कुछ कहा है तो निश्चय ही कहीं ना कहीं ये मेरे हित की बात है, मेरे भले की बात है। और मुझे लगता है कि 3-4 सप्ताह गुजर जाने के बाद एक एक दिन जैसे गुजर रहा है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व और ज़्यादा महसूस हो रहा है और उसका पालन भी बहुत अच्छे और बड़े वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है। उदाहरण के तौर पर वो गोले बनाने वाला क्रम एक शुरू हुआ और चूँकि मैं सीधा मेरी जिम्मेवारी में पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर की निगरानी आती है, तो हमने देखा कि जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र थे, पहाड़ी क्षेत्र थे, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इतना शिक्षा का स्तर भी नहीं था, आर्थिक स्तर भी नहीं था, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन लोगों को ये समझ आई कि किस प्रकार हमने वो गोला बना करके खड़े रहना है। और यही कारण है, जैसे आपने आरंभ में कहा, जिस प्रकार से प्री एम्प्टिव तरीके के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक पहल की है, आज कोरोना के खिलाफ इस जंग में भी भारत का रिकॉर्ड अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है, बल्कि दूसरे देश हमसे न केवल प्रेरणा ले रहे हैं बल्कि सहायता भी मांग रहे हैं। पूर्वोत्तर की स्थिति अगर हम देखते हैं आंकड़ों के लिहाज से तो काफी कुछ देश के अन्य हिस्सों से बेहतर है। तो ये जो तैयारी थी उसका नतीजा है, जो प्रतिबंध वहां पर बरते गए उसका नतीजा है, जो सहायता वहां पर उपलब्ध कराई गई उसका परिणाम है। आपको स्मरण होगा कि जब ये सरकार गठित हुई थी 2014 में, तो आरंभिक दिनों में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैंने दोनों भुजाओं का विकास सुनिश्चित करना और पूर्वोत्तर को दूसरे प्रदेशों की तुलना में ला करके खड़ा करना। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में भी पूर्वोत्तर के लोगों को उतना ही ध्यान, उतनी ही तवज्जो मिली है जितनी के बाकी प्रदेशों को। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप जनमानस, आम व्यक्ति पूर्वोत्तर के किसी प्रदेश में चले जाइए, वो ये कहता है कि जितना सहयोग, जितनी सहायता की हमें अपेक्षा थी उससे कहीं अधिक। और आपने कार्गो सप्लाईज की बात की, प्रारंभ में ही 30 मार्च को ही लगभग मध्य रात्रि को 11-12 बजे के करीब एयर इंडिया का पहला कार्गो फ्लाइट वहाँ पहुँचता है और उसके उपरांत दूसरे दिन सुबह दीमापुर में एयरफोर्स की फ्लाइट, और फिर निरंतर ये क्रम जारी रहा कल तक। और मुझे लगता है कि लगभग 150 टन तक कार्गो, मोटे तौर पे मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, पहुँच चुका होगा। जबकि पूरे देश में यदि देखा जाए, कल मैं आंकड़े देख रहा था, तो कार्गो जो पहुँचा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एयर कार्गो के माध्यम से, ये सामग्री चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स या दूसरे, वो लगभग कोई 400-450
टन के बीच में। तो आप अंदाज लगाइए कि मात्र 3 या 4% जनसंख्या है पूर्वोत्तर की, पूरे भारत की जनसंख्या का हिस्सा अगर आप माने। लेकिन उसके बावजूद ये समझते हुए कि टोपोग्राफी की चुनौतियां हैं, भौगोलिक चुनौतियां हैं, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान नहीं है, उसको ध्यान दिया गया। और साथ ही साथ लद्दाख को भी साथ ही साथ, क्योंकि वहाँ पर जोजिला पास बंद रहने के कारण पिछले कुछ महीने, अब तो 2-3 दिन से उसको शुरू कर दिया गया, कुछ 1 महीने से सड़क रास्ता यातायात बंद था। तो इन दोनों क्षेत्रों को तो कितनी संवेदन, ना केवल वैज्ञानिक ढंग से सारी इस समस्या का समाधान और इसको अप्रोच किया गया, बल्कि साथ ही साथ बड़ी संवेदनशीलता के साथ। इसके अतिरिक्त यहाँ तक डोनर का मंत्रालय है। मैं समझता हूँ कि लॉकआउट की घोषणा से पहले ही हमने पूर्वोत्तर विकास संबंधी मंत्रालय में ये निर्णय किया कि अब हम अपने सारी ऊर्जा, सारा ध्यान इस आपदा की ओर देंगे। भले ही हमारा मूलतः काम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो हमने क्या किया कि नेसिड हमारे पास एक नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम होती है जिसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक होता है। तो हमने सभी प्रदेशों को कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम नियमों में संशोधन कर लेंगे, लेकिन जो इसमें हेल्थ सेक्टर का जो कंपोनेंट है, श्रेणी है, वो आप पूरी तरह यदि कोविड नियंत्रण पर लगा दें तो हम उसके लिए आपकी सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त तुरंत 25 करोड़ की राशि उनके डिस्पोजल पर रख दी गई कि प्रारंभ में जो उनको दिक्कतें आ रही थी, वेंटिलेटर्स उनको उपलब्ध करवाने का भी हमने काम किया। इम्फाल में, मणिपुर में 2 केस पॉजिटिव आए और उसके अगले ही दिन रिम्स अस्पताल है वहाँ पे, इंस्टीट्यूट इम्फाल में 10 वेंटिलेटर रख दिए। हालांकि परमात्मा की कृपा से वो दोनों केस नेगेटिव भी हो गए, बाद में आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये कि हमने इंतज़ार नहीं किया कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हमने प्रीएम्प्टिव वर्स्ट एवर सिचुएशन के लिए या वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन के लिए भी तैयारी करके रखी। एक तो त्वरित रणनीति, उस पर कार्य करना, दूसरा जो 5500 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पर लगता है, जो सीमा है, उसको सील करना, वो कितना अहम रहा, जिससे कि आवागमन जो है वो पूरी तरह से शुरुआत में ही बाधित हो गया और वहां पर ज्यादा केसेस नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया बात की आपने। और जैसा आपने कहा कि लगभग 5500 किलोमीटर का बॉर्डर है, सीमा है, जिसमें अनेकों देश आते हैं, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। उसको पूरी तरह से सील करने का ये नतीजा हुआ क्योंकि पहले हमारा बड़ा पोरस बॉर्डर था, विशेषकर म्यांमार और मणिपुर और नागालैंड के साथ आना जाना भी लोगों का रहता था। और एक प्रावधान भी है कि 20 किलोमीटर के भीतर आवाजाही हो भी सकती है, उसको बंद कर दिया। नेपाल के बॉर्डर को तुरंत प्रारंभ में ही लॉकडाउन से बहुत समय पहले पूरी तरह सील कर दिया गया। उसका परिणाम आपके सामने, सिक्किम में एक हुई केस पॉजिटिव नहीं हुआ। अन्यथा कुल मिलाकर के हम अगर देखें तो दूसरे प्रदेशों की तुलना में यहाँ पर स्थिति काफ़ी अधिक नियंत्रण में रही है। और उसका कारण भी यही है, सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स, प्रीएम्प्टिव अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड एक बहुत अहम बात जिसका शायद कभी कभी उल्लेख नहीं आता कि लोगों में स्वयं भी एक अनुशासन का स्वभाव है कि पूर्वोत्तर लोग बहुत ही सभ्य है, सिविलाइज्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। यदि उन्हें कोई समझाया जाए तो वो समझते हैं, और यदि उनको नहीं समझ में आए तो वो आपके साथ तर्क करेंगे। तर्क करके जब वो समझ जाएंगे तो फिर उसका पालन बड़े अनुशासन और बड़े ही शिष्टाचार और सभ्यता के साथ करते हैं। और उसका ये नतीजा है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर के पिछले 5 वर्षों में कहा जा सकता था कि नॉर्थ ईस्ट एक डेवलपमेंट मॉडल बन के ऊपर आया है, जिस प्रकार क्रांतिकारी वहाँ बदलाव आया था मोदी जी के नेतृत्व में, इसी प्रकार कोविड का ये युद्ध जब समाप्त होगा तो नॉर्थ ईस्ट अपने में इस तरह का एक मॉडल साबित होगा। चैलेंजेस की आप बात कर रहे थे, जब तुरंत निर्णय लेना हुआ इस पर, तो किस किस तरह की चुनौतियां सामने थी और उसके लिए किस तरह से रणनीति बनाई गई, किस तरह से विभिन्न आधार तय किए गए? जब पहला केस डिटेक्ट हुआ है विश्व स्तर पर, तो उस समय मेघालय में भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा था। तो किसी को इस प्रकार की कल्पना नहीं थी कि अब इसमें कुछ संयम बरतना पड़ेगा या नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है और संतोष भी है कि हमने मेघालय के मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन के साथ मैंने स्वयं चर्चा की और मैंने कहा कि आपने मुझे भी निमंत्रित किया है, वो तो आपकी बहुत बड़ी कृपा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इसको उतनी बड़े मात्रा में इसकी सेलिब्रेशन और इस तरह का ना हो, क्योंकि भले, और ये बहुत संवेदनशील बात थी क्योंकि वो
वो बहुत सेंसिटिव हैं अपने त्योहारों के बारे में, तो धीरे धीरे उन्हें मोटिवेट किया गया। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इसकी तैयारी की थी। इवेंट कंपनीज और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसीज उनकी दिल्ली से और अन्य शहरों से बेंगलुरु तक से पहुंची हुई थी। उन सबको समझा करके कन्विंस करके टोन डाउन किया और धीरे धीरे उनको लगा कि यदि हम बचे हुए हैं तो इस कारण कि हमने शुरू से ही अपने अनुशासन का पालन प्रारंभ कर लिया था और उन्हें इस बात की अहमियत और इसके महत्व को भी समझने में आसानी हुई। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की जा रही है कि इस पर नियंत्रण करें? कितनी जो राहत सामग्री है वो वहाँ तक पहुँचाई गई है? क्योंकि लॉकडाउन वहाँ पर भी कई जगह रेड जोन्स बनाए गए हैं, तो वो आपूर्ति बाधित ना हो, साथ ही जो मेडिकल चिकित्सकीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जहाँ तक संबंध है, विडंबना ये है कि आरंभ में लद्दाख की चिंता हुई थी, सारे देश में चिंता होने लगी कि यकायक वहाँ पर 8-10 केस हो गए और फिर जाकर के 13 हो गए, अब तो 15 तक भी पहुँच गया। तो हुआ क्या था कि वहाँ से कुछ एक लोग ईरान यात्रा करने गए थे, जब वो लौटे तो अधिकतर वो कारगिल जिला के थे और उस समय बहुत बड़ी चिंता हुई कि साहब ये तो अभी बाकी प्रदेशों में उस तरह की मात्रा में सामने इस तरह के केसेस नहीं आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर जिस प्रकार से नियंत्रण पा लिया गया और उसके लिए बधाई के पात्र हैं वहाँ के प्रशासक, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, बड़े अनुशासनबद्ध तरीके से धीरे धीरे उस पर नियंत्रण हो गया। अब 1 आध दिन पहले हमें एक और पॉजिटिव केस मिला है, वरना कुल मिलाकर के मुझे लगता है आने वाले ही कुछ एक दिनों में कारगिल का जिला जो है वो पूरी तरह कोरोना फ्री डिक्लेयर हो जाएगा, जो कि इत्तेफाक से वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन दी कंट्री था जहां कोरोना पॉजिटिव हमें दिखने शुरू हुए। कुल मिलाकर के 3 जिले ऐसे थे जम्मू कश्मीर में जिनको रेड में लाया गया था। एक राजौरी का, जहां से पहला तबलीगी केस जो पॉजिटिव पाया गया था जिसकी बाद में मृत्यु हो गई, वो एक मांझा कोट वहाँ गांव है राजौरी जिले में, वहाँ का रहने वाला था। तो एक वो जिला, एक उधमपुर का और एक बांडीपुरा कश्मीर घाटी का। धीरे धीरे अब वो भी नियंत्रण में आ गया और इसलिए कि वहाँ के जिला प्रशासकों ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। यंग वहाँ पर कलेक्टर डीसीज थे। इस प्रकार का लॉकडाउन हुआ कि देहातों के बीच की गलियाँ, छोटी छोटी पतली गलियाँ जो हैं, वहाँ पर भी लोगों ने आवाजाही बंद की और मोटिवेशन का ये आलम कि एक समय आया कि जब महिलाएं स्वयं लाठियां लेकर के बाहर आई और बोली हम गश्त देंगे, अगर कोई युवा बाहर निकलते हैं तो हम उनको रोकेंगे। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी वो बहुत ज़रूरी थी इसके कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, तो वो काम वहाँ पर कितनी बेहतरी से हुआ? नहीं, बहुत अच्छी बात पूछी आपने और मुझे लगता है ये सबके लिए भी साझा करने लायक है कि इसमें बड़ा एक संवेदनशीलता का तत्व था, एलिमेंट ऑफ सेंसिटिविटी। शुरू में क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन हुआ और विशेषकर ये कठुआ का जिला चूँकि बॉर्डर का जिला है, तो बहुत भारी संख्या में छात्र आना चाहते, विद्यार्थी आना चाहते थे कि हम जाके अपने परिवारों के साथ जुड़ जाएं और स्वाभाविक था कि वो लखनपुर और कठुआ से होते हुए जाते थे। और कुछ एक पता चला कि कुछ बालक छिप करके निकल जाते थे, खेतों से होकर के आगे चले जाते थे। फिर हमने जब उनको ट्रेस किया तो मेरी स्वयं उनसे बात होती थी। लगभग हम दिन में 400 लोगों से टेलीफोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं सभी प्रशासकों के साथ। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा तुम तो निकल आए और तुम्हें होगा भी कुछ नहीं, तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो कि खेत लांग करके आ गए, लेकिन अब घर में दादाजी का वो उनको दिक्कत होगी तो उसका नतीजा ये हो कि वो बच्चा भी थोड़ा सा सावधान हो गया और उसके बुजुर्ग भी सावधान हो गए कि हमसे गलती हुई है। बच्चे के ममता के चलते से विविश होकर के हमने इसको इस तरह से घर से आने दिया। तो इस तरह से फिर माता पिता वालिदैन का भी सहयोग हमें प्राप्त होने लगा। बच्चों को फ़ोन करेंगे, लगभग कंट्रोल रूम जो होम मिनिस्ट्री में बनाया गया अमित शाह जी के नेतृत्व में, वो भी एक बधाई का पात्र है। लगभग 3000 वहाँ पर निवारण होते हैं। हमारे पास जो ग्रीवेंस सेल है, हमने अलग से पोर्टल बनाया है कोविड के लिए अपने जो हमारा सीपी ग्राम का, उसमें अब तक लगभग 9000 ग्रीवेंसेस को रिस्पॉन्ड किया गया है। तो उनको समझाने का एक क्रम प्रारंभ हुआ कि आप जहाँ हैं वहाँ रुकिए। हम मालूम है हमें कि आप थोड़े उदास भी हो रहे होंगे, थोड़ा अकेला भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप वापस जाएंगे तो अगर आप अविवाहित हैं तो आप अपने माता पिता और दादा के लिए बीमारी ले जाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो अपने छोटे बच्चे के लिए लेकर के जाएंगे। तो इस समय केवल प्रश्न आपके अपने सुरक्षा का नहीं है, आपके प्रियजनों का है।
और वहाँ पर उनकी व्यवस्था के लिए जहाँ जहाँ से हमने हेल्पलाइंस तैयार की हैं, मुझे कहने में बड़ी तसल्ली है कि पूर्वोत्तर के महत्व को देखते हुए पूर्वोत्तर के लिए एक एक्सक्लूसिव हेल्पलाइन बनाई गई 1944 जो यूनिवर्सल हेल्पलाइन है, जबकि बाकी देश के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसमें इंक्लूडेड है 1930। इसके अतिरिक्त अपनी अपनी हेल्पलाइंस अलग, जम्मू कश्मीर ने अलग बनाई, लद्दाख ने अलग बनाई, पूर्वोत्तर के हर एक प्रदेश ने अलग बनाई। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर अलग, जम्मू कश्मीर के जिलों में अलग अलग हेल्पलाइंस बनाई गई हैं। अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है जो अभी 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, उसमें कृषि और बागवानी क्षेत्र इनको छूट दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां पर काम कर सकते हैं, चाहे बागवानी से संबंधित लोग हों, मनरेगा के वर्कर्स हैं, उनको वहां पर लाभ मिलने वाला है। तो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कृषि का, बागवानी का और मनरेगा का काफी कुछ वहां पर असर दिखाई देता है। तो किस तरह से वही जान भी और जहान भी बचाई जा रही है और जहान भी एक तरह से बचाया जा रहा है। वहाँ का एक बाईपोलर सा दृश्य है। अब ये जो मैदानी इलाका है प्लेन का, जो पंजाब के साथ लगता है, जिसमें कठुआ है, सांबा है, जम्मू का भी क्षेत्र है, वहाँ पे तो कटाई का मौसम है। और ये जो बैसाखी हो गई 13 तारीख को, तो इस त्यौहार का महत्व ये होता है कि हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो जाता है। तो वहाँ फार्मिंग सेक्टर का अर्थ ये रहेगा कि कटाई करनी। जो पहाड़ का क्षेत्र है, जब हम आगे चले जाते हैं, उदाहरण के तौर पर रियासी जिला के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा है, दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ बुहाई का है, वहाँ बीज पहुँचाना। तो दोनों अलग अलग किस्म की, यहाँ पर जो उगा हुआ फसल है उसको काटना, वहाँ पर नई फसल लगाने के लिए बीज उपलब्ध कराना, और बीज उपलब्ध करवाने के लिए भी बाहर से कुछ ना कुछ यातायात का साधन चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि 20 तारीख के बाद हम उसका भी कुछ ना कुछ आयोजन कर पाएंगे। धीरे धीरे उसके ऊपर एक्सरसाइज सभी जिलों ने प्रारंभ कर दी है कि हाउ टू गो अबाउट विद इट। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो एक और संवेदनशील मामला वहां पर सामने आता है। प्रशासन के साथ साथ वहां पर जो सुरक्षा बल हैं वो भी जागरूकता भी कर रहे हैं, जरूरतमंदों को वहां पर जो तमाम जरूरी सामान है वो मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा एक और खतरा वहां पर जो रिपोर्ट्स आई थी कि आतंकवादी भी इस आपदा की आड़ में भी चैन से नहीं बैठे और इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो उन पर भी कंट्रोल करना कितनी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस वातावरण में भी पाकिस्तान की ओर से शरारत में कोई कमी नहीं आई और इतना नुकसान भी हुआ। कुछ हमारे सैनिक इसमें शहीद भी हुए हैं पिछले कुछ एक दिनों में। लेकिन जहाँ तक हमारे सुरक्षा बलों का संबंध है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की, मैं तो सदा ये कहा करता था कि देश और राष्ट्र ऋणी है सुरक्षा बलों के प्रति। आज से नहीं, कई सालों से कहता हूँ, और मैं कह रहा था, ये भी कहता हूँ कि अगर किसी सुरक्षा बल या सुरक्षा कर्मी के खिलाफ कोई उंगली उठाता है तो इतना घोर पाप है जिसका प्रायश्चित परमात्मा भी नहीं करवा सकता। आज एक बार फिर से ये बात साबित हुई और मैंने उस दिन ट्वीट भी किया। CRPF के जवान जा करके लोगों को मास्क पहुँचा रहे, उनको भोजन पहुँचा रहे। तो मैंने ट्वीट किया कि CRPF इन कश्मीर फाइटिंग मिलिटेंसी एंड कोरोना साइमल्टेनियसली। तो एक और आपको वो हथियारबंद हमलावर से बचाते हैं और दूसरी ओर आपको खाना खिलाते हैं, आपदा से भी बचाते हैं। और ये काम केवल भारत की सेना कर सकती है। नॉर्थ ईस्ट की आपने बात की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों से 6 अप्रैल को प्रपोजल्स भी मांगे गए थे। उसमें किस तरह की मांगे उनके सामने आई हैं और उसमें आगे कहाँ तक काम हुआ? उसी के चलते हमारे पास अनेकों प्रपोजल आए हैं। उदाहरण के तौर पर मणिपुर चाहता है कि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल बनाएं। हमने कहा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। उसका ये नतीजा होगा कि आज कोविड के बहाने एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए एक अलग सा डिजिग्नेटेड अस्पताल बन जाएगा। कल कोई और भी किसी बीमारी के उपचार के लिए काम आ सकता है। इसी प्रकार मेघालय ने कहा है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो इमरजेंसी केयर के लिए है, वेंटिलेटर्स इत्यादि की दृष्टि से, उसमें हम बढ़ोतरी लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। हमने उनको भी प्रपोजल, उनका भी हमारे पास पहुंच गया है। इसी तरह से मिजोरम ने भी कहा है कि हम क्रिटिकल हेल्थ केयर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक और कोविड के बहाने जिस चुनौती का एहसास हुआ कि यदि आज कोविड है तो कल किसी और स्वास्थ्य चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी रखनी हो। और जैसे मैंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग बहुत जागरूक हैं, तो उनके ध्यान में ये चीज़ आई और जब हमने उनको राशि उपलब्ध करवाने की बात की तो प्रपोजल्स हमारे पास एक के बाद एक आने प्रारंभ हो गए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में कोविड एज ए फॉल आउट ऑफ कोविड, इन द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड, बहुत बड़ी मात्रा में एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलप हो जाएगा। आपसे बात जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खास मुलाकात में हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, किस तरह से इस आपदा के निपटने की तैयारी है। सर, हम जब आपदा के निपटने की तैयारी की बात करते हैं, तैयारी की एक नई संस्कृति की बात अभी आपने कही, और उसी के मद्देनजर सभी राज्यों की समीक्षा हो रही है। पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर में अच्छा काम हुआ है, लेकिन एक नेशनल आपने डैशबोर्ड लॉन्च किया, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, उसका कितना फायदा देखने को मिला? मुझे खुशी है कि आपने ये विषय भी छेड़ा, क्योंकि ये जो दूसरे विभाग हमारे साथ संबंधित हैं, डीओपीटी का, एआरपीजी का, पेंशन्स का और यूपीएससी के साथ हम समन्वय के साथ काम करते हैं, उन्होंने भी कोविड के इस चुनौती के चलते एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि आपने डैशबोर्ड की बात की, तो नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पहली बार डीओपीटी की ओर से लॉन्च किया गया और उसमें एआरपीजी की ओर से जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सीपी ग्राम पोर्टल है उसमें एक अलग विंडो रख दी कोविड की, यानी कोई कोविड रिलेटेड ग्रीवेंस उस पोर्टल में डालता है तो ऑटोमेटिकली उसमें चली जाती है। वो हमारी 1 अप्रैल से शुरू हो गई थी और अब तक उसमें कोई 8000 से अधिक ग्रीवेंसेज एड्रेस हुई हैं और एवरेज टाइम है 1.5 डेज, यानी 1.5 दिन से ज़्यादा कोई ग्रीवेंस उसमें पेंडिंग नहीं रहती। अब वो किस मात्रा तक हल हुई है वो दूसरी बात है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पेंशन्स का विभाग है। किसी भी केंद्र सरकार के अधिकारी या कर्मचारी की पेंशन को रुकने नहीं दिया गया, उसके खाते में महीना बदलते ही पहुंचा दिया गया। और व्यक्तिगत तौर पर मैंने स्वयं बैठ करके 20 नगरों में, 20 शहरों में पेंशनर्स के साथ वार्तालाप की वीडियो के माध्यम से, और अनुमान लगाइए हम चेन्नई से शुरू हुए, बेंगलुरु, हैदराबाद, ऊपर तक आए, चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली तो थे ही, जम्मू के अतिरिक्त जयपुर, ग्वालियर, पुणे, मुंबई, हर शहर में पेंशनर्स को बिठा करके उनकी जो चिंताएं थी उसका निवारण किया। और यही नहीं, क्योंकि हमें ये एहसास था कि ये एल्डर सिटीजन्स का वर्ग रहता है, तो साथ में हमने डॉक्टर गुलेरिया को भी बिठा लिया, जो हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं और पल्मोनरी मेडिसिन के विशेषज्ञ माने जाते हैं इस कोविड बीमारी को लेकर के। और उनके माध्यम से भी यदि कोई चिकित्सा संबंधी या कोविड संबंधी कोई आशंकाएं थी उसको अभी निवारण करने को, दूर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त आपने ये बात छेड़ी है तो आपके माध्यम से एक बात और स्पष्ट हो जाए। बहुत समय से सोशल मीडिया पर और दूसरे तरह से हमारे पास दूसरे माध्यमों से युवाओं की ओर से आ रहे थे कि साहब यूपीएससी का इम्तहान है, कैसे होगा, हमारा आईएएस का सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था वो रुक गया, प्रीलिमिनरी होने वाला था उसकी तारीख क्या होगी। अब स्वाभाविक है कि जब तक इस प्रकार की स्थिति है तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बच्चों में चिंताएं रहती हैं और जो बहुत पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं वो अपना टाइम टेबल बनाने के लिए चिंतित होते हैं। तो हमने आज से 2 दिन पहले, बल्कि परसों ही, यूपीएससी ने एक सर्कुलर निकाल करके ये स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के बाद ही होगा जो होगा, और हम आपको तारीख निर्धारित करके पर्याप्त समय भी दे देंगे। इसी प्रकार आज, और आज नहीं तो कल, निश्चित तौर पर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनकी ओर से भी इसी प्रकार की एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपके माध्यम से हम युवाओं को भी ये सुनिश्चित करें कि जो उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, कुछ एक थे आईएएस का प्रीलिमिनरी दे चुके थे, अब फाइनल जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें इंटरव्यू इत्यादि आता है, तो वो रोकना पड़ा हमें, यकदम ये आपदा सामने आ गई। इसी प्रकार प्रीलिमिनरी होना था जो पहला,
तो उसकी तारीख आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब, लेकिन उसका निर्णय हम 3 मई के बाद लेंगे। एक प्लेटफॉर्म आपके यहाँ से लॉन्च हुआ iGot, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में जो है कोरोना वॉरियर्स तैयार किए जा सकते हैं। वो कितना बड़ा महत्व है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी बेहतरी से पालन किया गया है कि वो आप अपने किसी भी सेटअप पर लर्न कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि मैं चूंकि बहुत सारे विभागों को देखता हूं, तो इसलिए मुझे शायद इतनी तैयारी करने का समय नहीं मिला जितनी आपने हमारे विभाग के बारे में खोज और तैयारी की है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात को भी ध्यान में लाया जो छूट गई थी कि iGot का हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था ऑफिसर्स के लिए, IAS ऑफिसर्स के लिए दिखता है, जिसमें अनेक तरह के कोर्सेज समय समय उसको हमने इस आपदा के चलते उसमें एक ऑनलाइन कोविड कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जो अवेयरनेस कोर्स है, जिसमें आपने कहा कि वो आम अधिकारी भी कोविड रिलेटेड विषयों का समाधान भी कर सकता है, निवारण भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में जैसे आपने कहा वो कोरोना वॉरियर के तौर पर भी तैयार हो सकता है। और इस अनुभव से मुझे लगता है आने वाले समय में हम इसका और ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। इसमें भी हमें इसकी भी क्षमता और अभ्यास आ जाएगा और बड़ा सफल रहा है। उसमें पहले ही दिन सैकड़ों की संख्या में ऑफिसर्स ने उसमें एंट्री हासिल की है। मैं आपसे भी यही पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप है, कितनी जरूरी है ये ऐप और आम जन से क्या अपेक्षा है? आरोग्य सेतु ऐप का जैसे आपने कहा धीरे धीरे सबको महत्व समझ आ ही गया, तभी तो केवल 12-13 आज ही मैंने ट्वीट किया, रिकॉर्ड 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है मात्र 12 या 13 दिन में। एक तो प्रधानमंत्री का आह्वान था, उसका भी जादू था। दूसरा, मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी में स्वयं जो साइंटिफिक टेम्पर है वो लोगों में भी आ गया। उनको भी समझ आया कि देखिए क्या अद्भुत ये वैज्ञानिक जगत का एक करिश्मा है कि उसके माध्यम से अगर आपके आजू बाजू में कोई पॉजिटिव कोरोना हो तो आपको उसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाता है। तो इतनी अच्छी सुविधा अगर यदि है उपलब्ध समय में, तो क्यों ना उसका भरपूर या पर्याप्त लाभ उठाया जाए। उस दृष्टि से भी लोगों को मोटिवेशन हुआ है। और मैं तो आपके माध्यम से भी कहूँगा कि हर व्यक्ति को चाहिए, और विशेषकर जो कि मैंने पहले ही दिन जिस दिन ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैंने पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों को, कलेक्टर्स को व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया, वहाँ के SSPs को, कि आप तुरंत पहले तो पुलिस कर्मियों को कहिए, क्योंकि जो लोग हाई रिस्क पर हैं, या डॉक्टर्स को कहिए कि वो तो तुरंत इसको डाउनलोड करें। और अब मुझे खुशी है कि आम लोगों में भी इसकी समझ आने लगी है। प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय के जो उपाय हैं उन पर भी अमल करने पर जोर दिया, क्योंकि हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक जो भी पद्धतियां हैं उसमें उसके पीछे का मंत्र ये है कि चूंकि ये एक वायरल डिजीज है, कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट उस तरह का नहीं है, तो इम्यूनिटी बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो सदा काम आते हैं। उसमें भले ही हाइजीन है, सफाई रखना है, और इसी तरह आयुष में कुछ एक ऐसी औषधियाँ उपलब्ध है जिससे आपके बॉडी का रेजिस्टेंस स्तर बढ़ता है, और उस पर बल दिया जाए, वो सरकार का प्रयास रहा है। और उसका भी वितरण आम लोगों में अब किया जा रहा है। आम जन को आप डीडी न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो अगर आम मानस को कोई सजेशन देनी है डीडी न्यूज के माध्यम से, तो ये कहूंगा कि आप डीडी न्यूज नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। कोरोना को लेकर उत्तराखंड की स्थिति अपेक्षाकृत अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। इसके बावजूद हमें बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है, ताकि हम कोरोना की जो ये मुश्किल स्थिति है उससे पार पा सकें। तो कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने भी कुछ जरूरी फैसले